morning. I am Dr. Padmesh Tripathi, Associate Professor of Mathematics. Today I am going to continue my third lecture on inventory problems. So today I am going to start objectives of inventory control. What are inventory control and why are inventories so important for us and how we can control these. This is our coming part. So we start from objectives of inventory control. To meet in unforeseen future demand due to the variation in forecast figure and actual figure, because we don't know what will be in future, what will be demand in future, etc. So keeping all these in mind, we need inventories. So how much inventories we have to preserve, this is done by inventory control. So different objectives, one by one we are going to deal. Then second one, to average out demand fluctuation due to season or cyclic variation. Sometimes it happens that in season some items is in more demand and some item is useless. So keeping all this, we have to see how to control the inventory. Next, to meet the customer requirements timely, effectively, efficiently, smoothly, and satisfactorily. Next, to meet the time lag for transportation of goods and to meet the technological constraints of production process, to balance various costs of inventory such as order cost or setup cost and inventory carrying costs. So these are few objectives of inventory control. And next, to minimize losses due to deterioration, obsolescence, damage, etc. To stabilize employment and improve labor relations by inventory of human resources and machine efforts, to smoothen the production process, to reduce loss due to change in prices of inventory model. So these were the reason behind inventory control, why we need controlling on inventory. So we have some advantages and disadvantages of inventory. So some advantages of inventory are the economics of production with large run size. This is very simple to understand, that the more you produce, the less you spend. जितना आइटम्स एक साथ हम प्रोड्यूस करेंगे उसका खर्चे उसी हिसाब से कम होगा. दिस इज इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन विथ लार्ज रन साइज. नेक्स्ट, द स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस. अगर इन्वेंट्री हमारी सफिशिएंट होगी तो हमको अपना बिजनेस रन करने में आसानी होती है, हम आसानी से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं. दो इकोनॉमिक्स इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमको थोड़ा सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो मे बी हमको ट्रक हायर करना पड़े, तो बेटर ये होगा कि आप उतना आइटम प्रोड्यूस करें, उतना आइटम ट्रांसपोर्ट करें कि पूरा ट्रक फुल ऑफ ट्रक आइटम आप ट्रांसपोर्ट करेंगे. सो दिस इज इकोनॉमिक्स इन ट्रांसपोर्टेशन. अगर आधे करेंगे तो भी उतने पैसे लगेगा, पूरे ट्रक लोड करके अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो भी प्राइस हमारा उतना ही आएगा. तो इसलिए बेटर ये होगा कि हम सफिशिएंट इन्वेंट्री से ट्रांसपोर्टेशन करें. द एडवांटेजेस ऑफ प्राइस डिस्काउंट्स बाय बाइंग एंड परचेजिंग. अगर हम एक साथ ढेर सारे आइटम्स को बाय करेंगे उस केस में हमको डिस्काउंट्स मिलते हैं. तो डिस्काउंट्स के लिए जितना ज़्यादा हमारे पास आइटम हम खरीदेंगे उतने ज़्यादा डिस्काउंट हमको
मिलना होता है। तो इन्वेंट्री से ये फ़ायदा हुआ कि अगर एडिशनल हम लोग इन्वेंट्री रखेंगे तो ज़्यादा हमको परचेजिंग करनी पड़ेगी, उस परचेजिंग पे वी कैन अवेल डिस्काउंट्स, फास्टर एंड एडिक्वेट सर्विस टू द कस्टमर्स। और हमारे पास सफिशिएंट अगर इन्वेंट्री में आइटम्स हैं, इन्वेंट्री है, तो हम कस्टमर की सर्विस फास्टर और एडिक्वेट कर सकते हैं। मतलब हमको ये नहीं करना है सम कस्टमर इज डिमांडिंग समथिंग, आई डोंट हैव टू रिप्लाई दिस, दैट नो, आई विल सप्लाई इट टुमारो। वंस वी हैव इन्वेंट्री we can immediately supply the item to the customer. Profit from speculation in the market where prices are expected to rise. Sometimes it happens that we expect the hike in price of some items. So we can store that item today on reduced prices so that we can sell it on higher prices in future. So this is another advantage of inventory. So despite so many advantages, we have some disadvantages also. नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा लाभ ही मिले, कुछ हानि भी होता है। तो देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं इन्वेंट्री के। The disadvantages associated with increased inventory is that the holding of inventory costs money due to the following. अगर हमने ढेर सारा इन्वेंट्री कर लिया तो उसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं है हमारा वेयर हाउस अपना हो, तो हमको रेंट देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर आइटम हम खरीदेंगे, स्टोर करेंगे, तो हमको उसी हिसाब से रेंट देना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से पैसा लेकर फिर हम सामान खरीदते हैं, तो जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या अगर हम अपना ही पैसा लगा रहे हैं तो वो जितने दिन तक ये हमारा इन्वेंट्री फिनिश नहीं होगा, जो हमने आइटम बाय कर लिया है, अगर ये बिकेगा नहीं तो उतने दिन हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा। तो ये सकता है कि इन्वेंट्री में बहुत दिन तक हमारा आइटम रह जाए तो हमको इंटरेस्ट जो होगा वो नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, इंटरेस्ट का लॉस होगा। फिजिकल हैंडलिंग, आइटम ज़्यादा होगा तो हो सकता है हमको एक इंसान की जगह दो इंसान रखना पड़े, एक मजदूर की जगह दो मजदूर रखना पड़ेगा। और सामान तो ढेर सारे ऐसा होता है कि अगर इसको हम यहाँ वहाँ करेंगे नहीं तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, तो उससे भी हमको बचना है। उसके बचने के लिए हमको जो लेबर की ज़रूरत पड़ती है वो अपना पैसा जाए। अकाउंटिंग, ज़्यादा सामान होगा तो उसके अकाउंटिंग के भी आपको चार्जेस देने पड़े, आपको अकाउंटेंट भी हो सकता है रखना पड़े इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए लार्ज स्केल। डिप्रिसिएशन एंड डिटीरियोरेशन, ये हमेशा नहीं होता कि हम हमेशा आज कोई आइटम बाय कर लें और ये हमेशा हमको बेनिफिट ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आज जो हम इन्वेंट्री में आइटम रखे हैं हो सकता है कि कल उसका रेट घट जाए, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ डिटीरियोरेट करते हैं। तो ये हमारी ये लॉसेज हैं इसके, डिसएडवांटेजेस। दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री। So next and main topic that now I am going to deal is cost associated with inventory. अब हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिफरेंट कॉस्ट जो इन्वेंट्री से एसोसिएटेड हैं। इनमें मेन 5 कॉस्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? इट्स नेम सजेस्ट व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। यू हैव टू order items and whatever expenditure you are going to do, all these are included in ordering cost. So formal definition, this is a cost associated with ordering of raw material for production purposes. This cost comprises of salaries and wages of involved personnel। इन्वेंट्री
इसके लिए आपने जो भी पर्सनल्स रखे हुए हैं उनको सैलरी देना होगा या उनका वेज देना होगा, तो ये एक्सपेंडिचर ऑर्डरिंग कास्ट में इंक्लूड होता है। पोस्टल, टेलीफोन, टेलेक्स एंड अदर सिमिलर बिल्स, जो कम्युनिकेशन के लिए आप एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे पोस्टल, आजकल लेटर का टेस्ट तो है नहीं, बट टेलीफोन, टेलेक्स, whatever communication you use, you have to spend something. So all these expenditure are in ordering cost. Advertisement, you advertise, you demand for tenders for items. So whatever expenditure is there, this is included in ordering cost. Next, you need some stationeries, pen, pencil, maybe diary, that is included in ordering cost. Entertaining the vendor suppliers, sometimes it happens that there are vendors whom you have to entertain. So the expenditure that is incurred is also included in ordering cost. And travel of stores personnel. If you have to order something, maybe you have to bring it by yourself. So all the expenditures incurred for the travel, this is included in ordering costs. So ये 6 कॉस्ट्स हैं जो ऑर्डरिंग कॉस्ट में एसोसिएटेड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड है। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है जो इन्वेंट्री में एसोसिएटेड है। इसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग और होल्डिंग कास्ट। इन्वेंट्री कैरिंग और होल्डिंग कास्ट, इसके नाम से दिख रहा है होल्डिंग, मतलब जितने दिन तक आप इन्वेंट्री होल्ड करेंगे, कैरी करेंगे, उसमें खर्चे जितना होंगे, वो क्या क्या इंक्लूड होगा वो हम देखते हैं इसमें। तो कॉस्ट्स इनकर्ड फॉर होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री एंड मेजर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम। ठीक है, इट इंक्लूड्स कैपिटल कॉस्ट, ऑब्सोलेंस कॉस्ट, डिटोरेशन कॉस्ट, taxes on inventory, insurance cost, storage and handling costs. All these costs are included in inventory or holding cost. The next one is setup cost. This is the cost associated with the setting up of machinery before starting production. Setup cost is generally assumed to be independent of the quantity ordered for production. What does it mean? अगर हमको किसी आइटम का प्रोडक्शन शुरू करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, पहले मशीनरी सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो उस मशीनरी को सेट करने के लिए जो कॉस्ट होते हैं वो सेटअप कॉस्ट कहे जाते हैं। और सेटअप कॉस्ट का क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता। मशीन आपको एक बार सेटअप करना है, इसका कॉस्ट एक बार हम देख लेते हैं, इसके बाद प्रोडक्शन हमारा शुरू हो गया। अब चाहे हम 100 प्रोड्यूस करें आइटम्स, 200 करें, 400 करें, इसका नो रिलेशन विथ सेटअप कॉस्ट। सो दिस इज आवर थर्ड कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। And the fourth one is purchase or production cost. As its name suggests, purchase or production cost. The cost of purchasing or producing a unit of an item is known as purchase or production cost. So all that we are saying, this is cost associated to purchasing of item or producing an item. And then the shortage or stock out cost. What is shortage? Its name suggests what is shortage cost. Suppose a customer is coming to a shopkeeper
and shopkeeper denies to deliver that item to that customer. Maybe there are certain cases when if the shopkeeper is not providing the item to the customer, maybe the customer may be in great loss. So there are certain contracts regarding this. If shopkeeper is unable to provide the item to customer, then he will be penalized. He will give some penalty to the customer. That is penalty cost. So the penalty cost for running out of stock, that is when an item cannot be supplied on the demand of customer, is known as shortage cost. तो अगर शॉपकीपर कस्टमर को आइटम नहीं सप्लाई कर पा रहा है तो जो उस पर पेनाल्टी लगती है वही शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट कहा जाता है. So thus we have seen 5 inventory costs. We had started from ordering cost, next holding cost, next setup cost, next shortage cost. These are 5 costs associated to inventory. Now what are the factors that affect inventory control? तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट करेंगे? तो पहला है डिमांड. तो डिमांड क्या होता है? द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर पीरियड इज कॉल्ड डिमांड. द डिमांड पैटर्न ऑफ अ कमोडिटी में बी आइदर डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक. डिमांड कितना होगा? अगर फिक्स्ड है इसको हम कहेंगे ये डिटर्मिनिस्टिक डिमांड है. अगर गेस करके हमको बताना है तो इसको हम कहेंगे दिस इज प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड. तो इन्हीं डिमांड्स पर डिपेंड करता हुआ हमारा 2 मॉडल होता है, 2 टाइप के इन्वेंट्रीज होते हैं जिसको अभी आगे हम लोग देखेंगे. प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री एंड डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री. सो सेकंड वन इज लीड टाइम. व्हाट इज लीड टाइम? द पीरियड दैट elapses between placing of an order and receiving in the stores is known as लीड टाइम. तो लीड टाइम क्या हुआ? आप जब ऑर्डर देंगे और उस आइटम को जब रिसीव करेंगे, इसके बीच का जो टाइम होता है इसको हम लीड टाइम कहते हैं. तो लीड टाइम 2 प्रकार के होते हैं. तो लीड टाइम हैज 2 कंपोनेंट्स, नेमली एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम फ्रॉम इनिशियलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्शन until the placing of an order, and the delivery lead time from placing of an order until the delivery of order material. तो 2 लीड टाइम हमने क्या क्या देखा? एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम. एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम क्या है कि मान लो हमको स्टेशनरीज खरीदने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या करना होगा? पहले हम उसके कोटेशंस मंगाएंगे. अगर एट लार्ज स्केल हमको बाई करना है तो पहले उसके कोटेशंस मंगाएंगे, फिर ऑफिस में डिस्कस होगा, इसके बाद हम उसको प्लेस करेंगे, ऑर्डर हम प्लेस करेंगे. तो ये जो ड्यूरेशन हुआ जो हमने इनिशिएट किया शुरू से प्लेसिंग द ऑर्डर, इस टाइम को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम कहते हैं. तो इसके बाद जैसे ही ऑर्डर हमारा प्लेस्ड हो गया, ऑर्डर हमने दे दिया, और फिर जब ये रिसीव होगा इसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं डिलीवरी लीड टाइम. तो these are 2 different lead times. And the next factor that affects inventory is order cycle. The time period between placement of 2 successive orders is referred to as an order cycle. आज हमने एक ऑर्डर दिया, नेक्स्ट हम कब देंगे? 1 हफ्ते बाद देंगे, 2 हफ्ते बाद देंगे, 3 हफ्ते बाद देंगे, महीने भर बाद देंगे, या साल भर बाद हम ऑर्डर करेंगे. तो ये जो ड्यूरेशन होता है, 2 साल बाद ऑर्डर हम करेंगे, ये जो ड्यूरेशन होता है इसको हम लोग ऑर्डर साइकिल का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच का जो गैप होता है वही ऑर्डर साइकिल होता है. तो 3 फैक्टर जो इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं वो हमने देखा. द फर्स्ट वन वाज डिमांड,
डिमांड जिसको हमने देखा दो टाइप के होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। इसके बाद हमने लीड टाइम देखा, लीड टाइम हमने दो लीड टाइम डिफाइन किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम और दूसरा डिलीवरी लीड टाइम। फिर तीसरा जो फैक्टर था वो ऑर्डर साइकिल था। ऑर्डर साइकिल क्या हुआ, जो एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच का जो गैप होता है उसी को ऑर्डर साइकिल कहा जाता है। तो दीज आर थ्री फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल। In fact, these are three main factors. As in my last slide, I told two types of inventory models are problems. So classification of inventory models. The inventory models are broadly classified into two categories. First one is deterministic model, in which these are the inventory models in which demand is assumed to be fixed for a subsequent period of time. डिमांड जिसमें फिक्स्ड होगा इसको हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहेंगे। अब यहाँ से हम गेस कर सकते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होगा, जिसमें हम डिमांड को एग्जैक्टली बता नहीं सकते, वो हम गेस करेंगे, है ना, या फ्यूचर या पास्ट एक्सपीरियंस से हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि डिमांड कितना होगा। इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहेंगे। तो प्रोबेबली इन्वेंट्री का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के लिए हमको दो मॉडल्स बताना होगा, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। और डिपेंडेंट ये किस पे है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन डिमांड। अगर डिमांड हमारा डिटर्मिनिस्टिक है तो जो मॉडल हम यूज करेंगे उसको हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहेंगे, और जिसमें डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक है उस मॉडल को हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहेंगे। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी मॉडल्स। नाउ द मेन टॉपिक that we should know that is covered inventory is how much to order. This is question. So economic order quantity, in short we will say EOQ. So EOQ is how much to order. Question is this, how much to order, and its answer is EOQ, economic order quantity. वो हम लोग निकालेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा इन्वेंट्री में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाउ मच टू ऑर्डर, इन्वेंट्री हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड ट्राई टू डू to purchase the inventory in such a manner that the loss is minimum. That's why we ask the question, how much to order? What are the conditions you have to see? Then you have to decide how much you have to order in order to minimize the losses in inventory. So this is called economic order quantity. In short, we will say it EOQ. So the formal definition is the inventory problems in which demand is assumed to be fixed and completely predetermined are usually referred to as the economic order quantity or lot size problem. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इसी को हम लॉट साइज प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो फॉर्मल डिफिनीशन क्या होगा, जिसमें डिमांड हमारा डिटर्मिनिस्टिक होगा। द इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स इन विच डिमांड इज एज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड एंड कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड मीन्स, फिक्स्ड एंड कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड मीन्स द डिमांड इज डिटर्मिनिस्टिक। तो जब हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स करेंगे इसमें हम लोग EOQ निकाल सकते हैं या लॉट साइज हम निकाल सकते हैं। तो यही हमारा मेन प्रॉब्लम होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, हाउ टू फाइंड EOQ या हाउ टू फाइंड लॉट साइज।
These are called EOQ problems or large size problems. तो EOQ मॉडल के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल्स के लिए और लार्ज साइज मॉडल के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स स्टडी करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस होंगे। इन्हीं एजम्पशंस से हम डिफरेंट मॉडल्स डिसाइड करते हैं। तो वी हैव टू डू at least 5 models depending on these assumptions of inventory model. And how to calculate EOQ depending on the model, there are slight differences in the formulae, and once you have formulae you can find EOQ. So we will study in detail in our next lecture, so different models. So that's all for today. Thank you.